गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे आप सब लोग? सब लोग ठीक है? माय डियर स्टूडेंट्स, once again welcome in my YouTube channel. Myself Shiv Prasad sir, your economics teacher. Students, as you know already that we have started our third chapter in economics, and in that so far we have completed up to aggregate demand. In last video we had studied the graphical presentation of the aggregate demand. Today our today's topic of chapter number 3, that is consumption function. Dear students, first of all we will discuss about the meaning of consumption function, that what is consumption function. Then we will see the diagrammatic presentation of the consumption function in today's video. So let's start without wasting our time. I have written over here consumption function or propensity to consume. Consumption function or propensity to consume. First of all, one must know the word meaning of propensity. Propensity means willingness. Willingness. What is that? Propensity means willingness. Propensity to consume means willingness to consume. So, either you say consumption function or propensity to consume, it is one and the same thing. Over here, I have written the meaning of consumption function or propensity to consume. It refers to functional relationship between. Dear students, many a time due to technical problem, students say that sir, whatever is written on the board, it is not clearly visible. So students, that's why I read slowly. If sometimes the visibility is not that much clear, then also you can understand, because I am reading that. It refers to functional relationship between consumption. It refers to functional relationship between consumption and national income. Consumption function refers to functional relationship between consumption and national income. Functional relationship between consumption and income. Dear students, after studying the aggregate demand, this line should be clear to all of you. Over there, while learning the components of aggregate demand, we have already discussed the relationship between income and consumption. You must be recalling that. What is that? Yes, that there's a direct relationship between consumption and income. Direct relationship between consumption and
income. As income goes on, as income increases, the consumption also increases. Direct relationship between income and consumption. जैसे जैसे किसी भी पर्सन का इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका लेवल ऑफ कंजम्पशन भी बढ़ते जाता है. बट इज हियर, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. बट डे बाय डे यू कैन से दैट वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कम होते जाता है. एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकम और कंजम्पशन ये इक्वल हो जाएगा, जो यहां डायग्राम में हमको दिखाना है. एक चीज और हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कभी भी कंजम्पशन ये जीरो नहीं होता है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी भी जीरो नहीं होता है. इनकम जीरो हो सकता है. एनीवे, ये सभी चीजों का जरूरत अभी पड़ेगा. आगे चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग तो क्लियर हो जाए. द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, it refers to functional relationship between consumption and national income. Relationship between consumption and income, or we can say national income. It represents the willingness of household to purchase goods and services. It represents the willingness of household to purchase goods and services at a given level of income during a period of time. एकदम सिंपल. मतलब क्या? हाउस होल्ड का विलिंगनेस, वो उनका कितना इच्छा है, कितना विलिंगनेस है अबाउट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना वो गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड करने वाले हैं. हाउ मच दे आर willing to spend, that is called as consumption function. इसी चीज को यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोला, it is a functional relationship between consumption and income. Very clear, simple एकदम. अब हमको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाना है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो एक शेड्यूल ले लिया हमने. डियर स्टूडेंट्स, ये वही शेड्यूल है जो लास्ट वीडियो में था. मैं एक बार फिर से बता रहा हूं शेड्यूल ड्रॉ करने का तरीका. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये फिगर्स को बाय हेड करें. खाली ये ध्यान देना है, दो कॉलम्स, इनकम Y एंड C, इनकम एंड कंजम्पशन. इनकम लगातार बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी लगातार बढ़ रहा है. देखिए कैसे. व्हेन इनकम इज जीरो, क्या ऐसा हो सकता है इनकम जीरो हो? यस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. इट इज पॉसिबल, इनकम जीरो हो सकता है, लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं होगा. ऐसा सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? हाँ, यस बेटा, राइट. इट इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन. ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन. आई होप सबको बराबर लिंक लग रहा है लास्ट वीडियो का. इनकम इज जीरो एंड द कंजम्पशन इज 40. इनकम राइज हुआ, 0 से 100 हो गया, कंजम्पशन भी बढ़ गया, 40 से 80 हो गया. इनकम और बढ़ गया, 100 से 200 हो गया, कंजम्पशन भी बढ़ गया, 80 से 200 हो गया. इनकम और बढ़ा, 200 से 300, 400, 500 एंड 600. नेक्स्ट साइड में देखो, कंजम्पशन भी लगातार बढ़ रहा है, 40, 80, 200, 260, 370, 440 एंड 580. डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसी को हम लोगों ने यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया है. वेरी सिंपल. OY एक्सिस पे कंजम्पशन है, OX एक्सिस पे इनकम है. हमारा ये 45 डिग्री पे मैंने इनकम कर्व ड्रॉ कर दिया. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट
इनकम कर्व ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं 45 डिग्री पे। और ये हमारा कंजम्पशन कर्व। व्हेन द इनकम इज जीरो, तो एट दैट टाइम ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ कंजम्पशन इज देयर। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कंजम्पशन, दैट इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम लोग C बार से डिनोट करते हैं। ये लास्ट टाइम भी आपको बताया गया था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये इनकम कर्व एज वेल एज कंजम्पशन कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैंने नाम दे दिया E। इट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। यहां भी आप कुछ नाम दे सकते हैं, समझो बोला OY1। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन। इवन मीन्स इक्वल, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे इक्वल है। कौन इक्वल है? इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो हमारा टेबल में देखिए, इनकम भी 200 और कंजम्पशन भी 200। इट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। टेबल ड्रॉ करने के टाइम पे ये बात को आपको ध्यान देनी है कि 0 से शुरू होगा टेबल, बाद में फिर इनकम लगातार बढ़ते जाएगा। कंजम्पशन आप चाहे जहां से शुरू कीजिए, ये मैं टेबल की बात कर रहा हूं। फिगर्स आप कुछ भी लीजिए, लगातार आप उसको बढ़ाते जाइए। कहीं तो भी एक जगह पे आपको इक्वल करना पड़ेगा इनकम और कंजम्पशन को, तो ही आपको ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, तो ही तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो आप एग्जाम में शो करेंगे, डायग्राम में शो करेंगे। दिस वन, सी दिस इनकम कर्व एंड इट इज योर कंजम्पशन कर्व। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, ध्यान देना क्या बता रहा हूं, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट consumption curve, this one is your consumption curve. Consumption curve is above the income curve. Consumption curve is above the income curve. Where before the break even point, consumption curve is above the income curve. It means what? The consumption is greater than income. Income कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एरिया है दिस मच, ये आपका डिस सेविंग्स है। डिस सेविंग्स, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, डिस सेविंग्स, डिस सेविंग्स। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, yes dear students, it is clear now that after break even point, if you observe the diagram, the income curve is above the consumption curve. So this area which I have shown in the diagram after break even point is savings. So what is conclusion? Before break even point this savings, and after break even point savings. So I hope this entire the presentation of consumption function or the propensity to consume is clear to all of you. Thank you very much for kind cooperation.